अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਨਏ ਟਰੈਵਲਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਰਵਸ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂट्स ने मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा और की बनेगा मेरा है। तो इस दौरान वो कई मेन गलतियां करता है सारे प्रोसैस ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਿੰਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਿੰਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿੰਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਟੂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿੰਗਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਲਕਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੁਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਡੇਟ ਆਫ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨ ਲਾਸਟ 10 ਈਅਰ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਖਾਲੀ पेज होने जिन्हें ते वीज़ा भी लग जाए कल नू स्टैंप आउट भी हो जाए है। और चौथा एक इंपोर्टेंट चीज़ है भी वैलिडिटी पासपोर्ट के मुतलक कि जो भी तुसी कोई भी बंदा शिंगन वीज़ा अगर मल्टीपल एंट्री का अप्लाई कर रहा है या लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पासपोर्ट की वैलिडिटी की डेट भी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट भी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ताकि अंबैसी नू वो वीज़ा इशू करदा कोई मसला ना बने। तीसरे नंबर पर जी इंपोर्टेंट चीज़ है वह है एप्लीकेशन फॉर्म सही करैक्टली फिल करना। नार्मली कोई भी बंदा जो भी शिंगन वीज़ा अप्लाई करता तो उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिता जाता है जोड़ा हर ही ट्रैवलर ने उन्होंने फिलअप करना होंगे और ये सही और करैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी चाहिए ताकि तुहानू बाद ये कोई मसला ना बने है। अमूमन लोग ये यूज मिसटेक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों सही फिलअप नहीं करते जिसकी वजह तो उन्होंने वीज़ा रिजैक्ट होने के चांसिस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫੁੱਲ ਕਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। चौथे नंबर जी इंपोर्टेंट चीज़ है वह है वे इंश्योरेंस। जो कोई भी बंदा यूरोपी यूनियन या शिंगन वीज़ा वास्ते अप्लाई करता है यूरोपी यूनियन का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि इंश्योरेंस जी उत्थे बाई करनी पैंदी है। बाद लोग बड़े फ्रीबलस जो होंगे ने समझते हैं कि नहीं सानू तो कुछ नहीं होगा, असं तो ठीक ही रहने, असं तो कदे बीमार नहीं हो। लेकिन एम्बैसी इस चीज़ का कोई कंसर्न है तुम बीमार नहीं होंगे हैं, एम्बैसी इस चीज़ का कंसर्न है कि तुम प्रोटैक्टेड हो, तुम इंश्योरेंस कवर कर रही या नहीं कर रही है। नॉर्मल तौर पर जी मेन रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस की होंगी है कोई केस ऑफ डैथ रिपाट्रिएशन जी
30,000 यूरो होनी चाहिए मिनिमम, वो होनी चाहिए और बाकी जितनी भी ज़रूरियात ने उसमें इंश्योरेंस कवर करती होवे। अगर बाद लोग जिहड़े ने वो लो कवरेज इंश्योरेंस लैंदे ने उसनूं भी अंबैसी रिजेक्ट कर दिंदी है और मिनिमम जिहड़ा है वो आल रिक्वायरमेंट्स कवर होवन और एक अच्छी कंपनी की इंश्योरेंस होवे जिहड़ी सारी चीज़ां नूं कवर करे, फिर ही तुहाडा वीज़ा एप्लीकेशन जिहड़ा प्रोसीड होवेगा। एक होर जिहड़ी सब तो वड्डी असी गलती करने कि असी वीज़ा कदों अप्लाई करना है, यानी कि जदों साडा टाइम प्लान है कि असी फलां मुल्क नूं फलां डे विजिट करना है तो उस तो किन्ना को पहले और किन्ना को लेट असी अप्लाई कर सकते हैं। नार्मल तौर पर शिंगन वीज़ा जिहड़ा ये भी रेगूलेटर जिहड़ा सर्टन कोड के थ्रू आउंदा है तो इसका भी अगर मैक्सीमम टाइम देखिए तो जिहड़े डेट नूं असी प्लान किया उस तो पहले भी 6 महीने पहले असी अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम टाइम भी जिहड़ा असी 15 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। हुण अगर कोई बंदा है कि समझदा कि मैं एक साल पहले भी अप्लाई करना वीज़ा तो वो अगर बाद क्राउडेड अंबैसीज भी होंगे जिन्हें बहुत रश होंगे उत्थे भी ये पॉसीबल नहीं है। नॉर्मल जो 6 महीने पहले असी अप्लाई कर सकते हैं। वो बड़ी मिसकनसैप्शन आती कि बाद लोग जोड़े उस तो पहले भी शिंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं, 5 दिनों शिंगन वीज़ा लग जाता है तो समझते हैं कि नहीं है कोई वड्डी डील नहीं है, बड़ा वड्डा खतरा नहीं है, बिग डील नहीं है तो असी जो हफ्ता पहले अप्लाई कर लाँगे। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह भी बहुत कॉमन मिसटेक है जी वीज़ा रिजैक्ट होने बड़े चांसेस ने। 6वें नंबर पर जी कॉमन मिसटेक वो है कि असी केड़ी अंबैसी च वीज़ा अप्लाई करना चाहिए है। नॉर्मली तौर पर अगर कोई बंदा भी यूरोप जा रहा है तो प्लान है कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों को विजिट करा और एक सिंगल वीज़े नाल वो मुख्तलिफ मुल्कों को विजिट करना चाहता है तो फिर वो वास्ते इंपोर्टेंट चीज़ है हो जाती है कि मैं किस मुल्क की अंबैसी च वीज़ा अप्लाई करा है। ये 2 रूल बन जाते हैं। मेन है कि तुसी मैं पहले नंबर पर कि तुसी उस मुल्क च अप्लाई करो वीज़ा जिसमें तुसी पहले फर्स्ट विजिट करें। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो प्लान है कि मैं 3 दिन आस्ट्रेलिया रहा, 3 दिन उस तो बाद जर्मन जावा, उस तो बाद 3 दिन फ्रांस रहा, उस तो बाद आउट हो जा। तो अगर तो उन्होंने इक्वल डेज फ्रेम है तो फिर उसका बैटर वे है कि तुसी पहले आस्ट्रेलिया की अंबैसी जाकर वीज़ा अप्लाई करो क्योंकि तुसी फर्स्ट विजिट आस्ट्रेलिया को कर रहे हो है। दूसरे नंबर पर यह होंगे कि एक बंदे का टाइम स्पेंड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल उन्हें 3 दिन आस्ट्रेलिया रहना है, 10 दिन जर्मन रहना है, हो सकता है 18 दिन फ्रांस रहना हो तो फिर टाइम ऑफ स्टे जो 18 दिन फ्रांस का सब तो ज़्यादा फिर उस फ्रांस की अंबैसी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए है बेस्ट वे। और लास्ट और आखिरी चीज़ जी इतना बड़ा बिग डील नहीं है जी वीज़ा रिजैक्ट होने जिदे कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे, इतनी बिग डील है को कैश लैके जाना वीज़ा दे उत्ते जो थोड़ा इंटरव्यू होगा तो कैश ना लैके जाना नाल है क्योंकि हर अंबैसी ने सहूलत नहीं रखी होंगी कि वो बाई कार पेमेंट ले ले या वो ऑनलाइन पेमेंट कर ले। बाद अंबैसी चाहिए भी मैनुअली चलता है तो इस गल कोशिश करो कि जो भी तुम वीज़ा लगवाने जाओ तो अपने नाल सर्टन कैश वाली वीज़ा फीस मिनीमम जी एज एक्सट्रा रख लो। अगर बाई चांस बाई कार पेमेंट ना हो तो उन्होंने बाई कैश पेमेंट कर सको। बाकी जिथे भी है वो जीमते वास्ते रहो। खुदा साहब दा हामी नासर रहे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।